न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस के। लीलावती अस्पताल में काला जादू, करोड़ों के गबन का आरोप। कर्ज तले दबा महाराष्ट्र प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फडणवीस पर कसा। वाल्मीकि कराड़ के जेल जाने के बाद धनंजय के बन गए क्राइम। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। लीलावती अस्पताल में काला जादू, करोड़ों के गबन का आरोप। महाराष्ट्र के मुंबई का फेमस अस्पतालों में से एक लीलावती अस्पताल अब खतरे में पड़ गया है। लीलावती अस्पताल के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और करोड़ों रुपए के गबन का आरोप भी लगाया गया है। लीलावती महाराष्ट्र की राजधानी स्थित लीलावती अस्पताल का संचालन करने वाले धर्मार्थ न्यास ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उसके पूर्व न्यासियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों ने 1500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का गबन किया है। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट ने इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय और बांद्रा पुलिस थाना में अलग अलग शिकायतें दर्ज कराई। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि अस्पताल परिसर में पूर्व न्यासियों और संबंधित व्यक्तियों द्वारा काला जादू भी किया गया था। शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि लीलावती अस्पताल के वित्तीय अभिलेखों के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान उजागर हुई इस हेराफेरी ने न्यास के संचालन और बांद्रा क्षेत्र में स्थित प्रमुख निजी चिकित्सा सुविधा द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित किया है। The Leelavati Hospital was completed in the year 1997 by our late trustee Shri Kishore Mehta and his wife Shrimati Charu Mehta. But in 2002 and onwards, their relatives, their brothers and nephews, they took illegal control of the hospital while Mr. Kishore Mehta was sick. And for the next 20 years, they were in control of the hospital. And over this period of 20 years, they indulged in various irregularities, illegalities. They committed forgery, cheating, and siphoned off funds of more than about 1,500 crores, which has already come to light in forensic audit. So, Bandra Police Station has registered one case of cheating and forgery of 12 crores, and on the directions of JMFC Court number 12, the Bandra Police Station has registered two more cases. One to the extent of 44 crores, which were disguised as legal fees, and second to the tune of 1,250 crores, which was shown as amount used for procurements. But it is apprehended and suspected that all these monies were in the garb of purchases and for various fees were actually siphoned off and taken maybe out of the country also, and these are proceeds of the crime. Hence we have requested proceeds of very serious crime, which are predicate offences under Prevention of Money Laundering Act. Hence we have recently written to the Enforcement Directorate to take cognizance of these cases of money laundering and start their investigation also. Sir, any other special you are going to, in other procedure or any other action you are going to take against them, any pipeline? So if any other irregularities, illegalities come to notice, we will definitely like to take action. And one more shocking incident or episode which came to light was that in the absence of these trustees, while the present ex-trustees were in command and control of the hospital, they indulged in black magic, inhuman and evil practices also, and urns containing human remains and other artifacts which are used for black magic were put inside the flooring of the room where Mrs. Charu Mehta and Mr. Prashant Mehta sat. The purpose and the belief obviously was to damage their health and whatever. So once the present trustees took charge of the hospital, they, following due process of, as required, all the flooring was dug out. It was all videographed in presence of witnesses, and thereafter we have lodged a complaint with the Bandra Police Station and subsequently with the magistrate, and the Honorable Magistrate 12th Court has found the offences to be so serious under black magic and evil inhuman practices that he has initiated inquiry on his own. So the Honorable Court is inquiring into this, and I'm sure it will be taken to the logical conclusion. Thank you very much. Thank you, sir.
अगली खबर, कर्ज तले दबा महाराष्ट्र, प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम फडणवीस पर कसा तंज। महाराष्ट्र की बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वाली महायुति सरकार में आने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट विधानसभा में पेश कर दिया है। सरकार ने चुनावों से पहले शुरू की जाने वाली लाड़की बहन योजना के बजट में बड़ी कटौती की है। महायुति सरकार ने लाड़की बहन स्कीम के बजट को 46,000 करोड़ से कम करके 36,000 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार के इस फैसले के बाद विपक्ष ने विधानसभा के बाहर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। महिलाओं के साथ धोखे वाली बात को लेकर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, देवेंद्र फडणवीस ऐसे बयान दे रहे हैं जिनकी कथनी और करनी में कोई मेल नहीं है। वह कुछ चीजें सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए करते हैं। जी ने बहुत सारी ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं जहां पे उनके वर्ड्स और एक्शन मेल नहीं खाते हैं और कुछ चीजें हैं जो सुर्खियां बटोरने के लिए काम करते हैं। मैं उम्मीद करती हूं महाराष्ट्र में जो जनता को वादा किया था, चाहे वो लड़की बहन हो, वो बजट में हमने देख लिया ना उनको 2100 रुपए मिल रहे हैं, ना बजट में प्रावधान किया है कि जो सारी महिलाएं हैं जिनको ये वेलफेयर स्कीम लागू हो रही थी कि उनको किसी तरीके का फायदा होगा। और जो बजट है दिखा रहा है किस तरीके से महाराष्ट्र में डेट बर्डन बढ़ रहा है। इन चीजों पे अगर ध्यान देंगे और उसकी तरफ लगातार काम करेंगे तो महाराष्ट्र के लिए भी और महाराष्ट्र के विकास के लिए भी अच्छा संकेत होगा। अगली खबर, वाल्मीकि कराड़ के जेल जाने के बाद धनंजय के बन गए राइट। धनंजय मुंडे का बीड़ जिले में अपराध और सरपंच संतोष देशमुख की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। यह बात पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे के चचेरे भाई अजय मुंडे ने कही है। अजय ने धनंजय मुंडे पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पंकजा मुंडे और धनंजय मुंडे दोनों भाई बहन का मंत्री बनना उनके विरोधियों के आंखों में खटकता था, इसलिए उन पर यह आरोप लगाए गए। संतोष देशमुख हत्या मामले के मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराड़ को धनंजय मुंडे का करीबी सहयोगी माना जाता था। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कराड़ के जेल जाने के बाद अजय मुंडे अब धनंजय मुंडे के करीब आ गए हैं। धनंजय मुंडे ने जब गोपीनाथ मुंडे का साथ छोड़ा था तब वाल्मीकि कराड़ ने धनंजय मुंडे के साथ रहने का फैसला लिया। इससे धनंजय मुंडे और वाल्मीकि कराड़ के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। वहीं अजय मुंडे महाराष्ट्र के बीड़ जिले के एक सक्रिय राजनीतिक व्यक्ति हैं। वह एनसीपी नेता धनंजय मुंडे के चचेरे भाई भी हैं। उन्होंने पर्ली निर्वाचन क्षेत्र में जगमित्र कार्यालय का कार्यभार संभाला है। पहले यह कार्यालय वाल्मीकि कराड़ देख रहे थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद यह जिम्मेदारी अजय मुंडे को सौंप दी गई। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।